स्वागत आपका खबर हटकर में। और इस वक्त की बड़ी एक खबर आ रही है, पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। जो यहाँ इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा से राघव चड्ढा को यहाँ से जिनके सदस्य थे उन्हें निलंबित किया गया है। फिलहाल जब तक जो विशेषाधिकार समिति है जब तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप देती तब तक के लिए उन्हें निलंबित किया गया है। जो प्रस्ताव है ये पारित हुआ है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, राघव चड्ढा विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक राज्यसभा से उन्हें निलंबित कर दिया गया है। जिस तरह का व्यवहार उनका रहा राज्यसभा में, राघव चड्ढा के खिलाफ राज्यसभा से यह प्रस्ताव पारित हुआ है जिसके बाद उन्हें निलंबित किया गया। आपको बता दें फर्जी हस्ताक्षर का जो मामला सामने आया था, फर्जी हस्ताक्षर कराने का इन पे आरोप था और उसी वजह से अब इनको राज्यसभा निलंबित किया गया है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी ऋषि कुमार का। ऋषि, क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है इस पूरे मामले में? देखिए, जहां तक अभी राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स की बात करें तो इस समय दो प्रस्ताव नेता सदन पीयूष गोयल ने सदन के सामने रखे, जिसमें एक तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और दूसरे आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा, इन दोनों के खिलाफ विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक उनको निलंबित करने का प्रस्ताव सदन के सामने रखा, जिसे सभापति ने सेंस ऑफ द हाउस लेते हुए अनुमति ली और सदन ने इस बात को ध्वनिमत से स्वीकार किया कि इन दोनों आम आदमी पार्टी के सांसदों को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक सदन की कार्यवाही से निलंबित रखा जाएगा। और इस पर सभापति ने भी कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से बार बार आग्रह करने के बावजूद भी सदन के जो नियम है उनका पालन न किया गया और जो डिसरेस्पेक्ट उन्होंने जो चेयर के प्रति दिखाया वो पूरे सदन की अवमानना है। और इस पर अब विशेषाधिकार समिति ये तय करेगी। ऋषि, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, अब सीधा रुक कर लेते हैं राज्यसभा का ही। राइजिंग ऑन द सीट, शाउटिंग स्लोगन्स, कमिंग विद अ गार्लैंड ऑफ टोमेटोज, वेयर आर वी हेडिंग? Where are we heading? Forget about the people at large. Your blood relations, your near and dear ones will not approve of it. And it is now 25 years since this report was put before this House. And the second one, members are expected to maintain high standards of morality, dignity, decency, and values in public life. Each word getting outraged. I must share my concern with the honorable members. What I saw in last few days, challenging manner with physical dimension, daring the chair virtually, what the chair can do. I have been extremely indulgent. But those of the members who have come in utter disregard, it has pained me. It was no rejoicing for me that even a senior advocate, Mr. Vivek Tankha, came into the well. A man holding high position in the legal fraternity, and you engage into such kind of transgressions. Imagine if this happens in a court of law, what the consequences will be. Ours is a much elevated institution. We have to decide the fate of every other institution in the country. We are repository of the power to ensure constitutional institutions continue to be within their bounds. I therefore appeal to you, earnestly appeal to you and plead with you, please informally reach out to your friends on the other side and discuss with them. Otherwise, the consequences for us will be that we'll surge into irrelevance. And that being the situation, the point is very clear. It is perhaps towards end of the road that we must awaken ourselves and do our duties. I'll take up the next item. Okay. Mr. Gupta, are you on your seat? Now just imagine. How can I give it to you? See, I don't have to tutor you every day. You were not in your seat. And that is why I did not hear you.
You will have a grievance. Sit down for a minute. No, you will have a grievance. You will have a grievance. I did not hear you. Why? I am at least bound by rules. I was telling you at that point of time, number of times that rule has been read out in the House, that you can speak only from your chair. And this can't be our norm. We have to exemplify our conduct by our actions so that people at large emulate us. They take us as role models. But right now, if they take us role models, then what will happen to the nation at large? I'm afraid I'm unable to. No. Honorable members, we have come to the conclusion of the 260th session of the Rajya Sabha. Let us make an assessment of the ground we have covered in our journey towards meaningful governance and legislative action. Let me tell you, in Lok Sabha, the Honorable Home Minister, for more than an hour, reflected only on Manipur. The Honorable Prime Minister, in his discourse, focused on Manipur, indicated to the nation a soothing and healing touch. अब सोचो हमने क्या खोया क्या पाया. On 20th of December, on the very first day, when the matter came up for consideration, the government had immediately agreed after I had accepted the notice. It was my discretion, my judgment to accept the notice that this House must debate Manipur. The debate did not take place. It was listed in supplementary list of business. I had indicated to the entire House the short duration discussion is limited to 2.5 hours. I invoked my authority under the rules and said I will keep it open-ended. Members of the House are extremely and enormously talented. We have Padma awardees of the highest category here, 3 of them. This House, on account of unruly conduct, indecorous behavior, could not avail the historic opportunity of guiding the Lok Sabha on Manipur. And that was on account of our actions. This was very painful. Once again, we yielded to the allure of narrow interest and allowed disorder to be the new normal in the proceedings of the House. It appears that my appeals have not resonated well with our members. The frequent unwholesome spectacle of disruptions only indicates that my message has not found the attentive audience it deserves. I would be open to any kind of idea. I've interacted with the honorable members, floor leaders in my chamber, and they agreed with me. And once they come to the House, things are otherwise. It's a worrisome, alarming scenario. A total of 44 hours and 58 minutes during the 17 sittings of the House were lost due to avoidable disruptions, adversely impinging on our overall productivity of this session. The people at large are in pain. They have got us elected here. They are sustaining us by their fiscal power. It's a heavy drain on exchequer. Our accountability and transparency has no died. Can we allow such a scenario to continue? Honorable members, we have been able to pass few bills during the session that witnessed some lively and animated debate. We could take up questions on a few occasions, but I feel the productivity of the question hour could have been much better. I will make an appeal to media also. It pains me when media carries a news report. Rajya Sabha passes bills in absence of opposition. It is factually wrong. Media is required to be on tenable factual ground.
the members chose not to perform their constitutional duty by being present. They walked out not from the house, but from their solemn duty, their constitutional obligations. And therefore, such kind of reporting by media, I appeal to media to be more sensitive to the sentiments of the people at large and properly, fairly report the proceedings of the House. Rajya Sabha also witnessed a positive development while giving fair representation to our dynamic women members to be part of the panel of vice chairman. I wish to utilize their innate managerial skills for the smooth conduct of the proceedings of the House. And friends, this decision was taken after careful deliberation. And I feel that women chairpersons have performed from this chair in a manner which is of the highest standards. When for the first time, P.T. Usha, who got a Padma Award in 80s, sat on this chair, I got messages from all over the globe that she has glorified this position. This gave me the spinal strength to put more honorable women members of this House in the chair. The first member of Parliament from Nagaland, Koinak, remarkable performance. And the same applies to others. I think they have vindicated the role, made us proud. In a similar vein, the Secretariat, in a laudable move, undertook a progressive initiative to empower its women employees by affording them the opportunity to attend to the significant table duties within hallowed chambers. Right now you'll see, all four are women. And there was a time when somebody sent it for the first time, I could see in media later on the chair was a lady member of this House. The speaker was a lady member, and the table was occupied by lady employees. And that photograph has been appreciated all around. Not from? Area, but during her conduct, she speaks good Hindi, sir. You should acknowledge that. और आपको बताऊं, मैं माननीय मंत्री जी, I have had involved interaction with all of them at Uprashtrapati Niwas, and I have come to know about her outstanding contributions. She is a leader in her own right. I wouldn't say a potential challenge to the Honorable Minister. As a matter of fact, let me report to this House, next session, I'll be having another team because many have interacted with me and they have a huge commitment to their duty, huge experience. Some of them have come from Sarpanch to this level. They have led empowerment of women programs extensively with attendance of thousands. But your point is well taken. Members, honorable members, the Secretariat in another commendable endeavor started a 2-week Rajya Sabha internship program with inaugural batch of 20 interns from northeastern states. I had the occasion to be with them along with the Honorable Minister Sonowal ji. Had dinner with them yesterday. Look at the brightness in their eyes, the kind of experience they had, and at the highest level attention was paid to their internship. A 1991 batch IAS officer, secretary to Rajya Sabha, was overlooking everything. And they will carry our message in the entire region. This program we will continue. I have no doubt our young interns gained better understanding and insights
and had this house been in a functional mode, it would have been much better. When one of the interns told me, we have been to the convention center. The second one said, we have been to Prime Minister's Museum. And the description was so vivid, as if I was in the museum. So that's a great achievement. We'll take it further. Honorable members, I have given certain rulings and made some observations, keeping in mind the expectation of the people from this august house. I know some of them may have been bitter, but I have suffered many such observations as a senior advocate from the court. The court is never ill-motivated against any lawyer. They make observations only to ensure that we rise up in our contributory mechanism in a positive manner. I have made that. I have taken a very few painful decisions, and that was in deference to my constitutional obligation and the respect I have for this esteemed house. If I had not taken those unpalatable decisions, then your respect for me would have gone down. I must express my deep sense of gratitude to Honorable Deputy Chairperson. A man of enormous patience, gifted with intellect, and always gave me sagacious advice. We interacted every day of the session. Though I am always careful to deal with journalists, and he is one, but then his disarming approach brought us together. But for him, things would not have been as productive from our perspective as they have been. Honorable members, तो देखा आपने राज्यसभा में सभापति जिनका कहना यही था कि जिस तरीके से सदन की कार्यवाही चलनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं चली, इस बात से वो आहत भी हैं। और इस दौरान जो वहाँ पे महिला सांसद हैं उनकी उन्होंने सराहना भी की। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से जो सांसद हैं राघव चड्ढा और संजय सिंह, जिन्हें फिलहाल निलंबित किया गया है क्योंकि जिस तरह का आचरण उनका रहा, जिस तरह का व्यवहार उनका रहा, और इस बात का जिक्र सभापति ने कई बार किया कि जो अगर ना सिर्फ संवैधानिक जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाए बल्कि नैतिकता के आधार पर भी अगर देखें तो इस तरह का आचरण, इस तरह का व्यवहार एक जो सांसद हैं उसका नहीं होना चाहिए। जब कोई भी सांसद बनता है, जब हम शपथ लेते हैं, उन बातों का हमें लगातार ख्याल रखना चाहिए। और जब आप सदन में मौजूद है, पूरा देश, पूरी दुनिया आपको देख रही है और वहाँ पे किस तरीके का व्यवहार आपको रखना है, किस तरह का आचरण आपको रखना है, जो आपकी जिम्मेदारियाँ हैं, जो आपका दायित्व है, उसको पूरा ज़रूर करना चाहिए। फिलहाल आइए एक बार और यहाँ पे आपको अब लगातार हम जानकारी दे रहे हैं क्या कुछ हो रहा था राज्यसभा में। जो सभापति हैं वो यहाँ पे बता रहे थे कि किस तरीके से जो कार्रवाई और कई जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जैसा उन्होंने लगातार कहा, मणिपुर का उन्होंने जिक्र किया कि वो चाहते थे इस पे एक अच्छी जो संवाद है वो होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। उसके साथ साथ और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे, लेकिन विपक्ष ने ना जो चर्चा है उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई, सिर्फ शोरगुल रहा, हंगामा रहा। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो मीडिया है उसकी जो जिम्मेदारी है उस पर भी हमें देखना चाहिए। और आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी ऋषि का। ऋषि जी, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जिस तरीके से सभापति ने कहा कि जो कार्रवाई जिस ढंग से चलनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं हुई, कई महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पे चर्चा की जानी चाहिए थी, उन मुद्दों पे भी नहीं हुई। और साथ ही उन्होंने मीडिया का जिक्र भी यहाँ किया कि एक धड़ा ऐसा है जो शायद इस तरह की रिपोर्ट दिखा रहा है कि विपक्ष की गैर मौजूदगी में जो बिल है वो पास किए गए। बिल्कुल, देखिए, सभापति ने यहाँ सिलसिलेवार तरीके से जो विस्तृत अपना पक्ष रखा है, खासतौर से सभापति के ऊपर जब जिस तरीके से हमने देखा कि जो विपक्ष के सांसद हैं उनकी तरफ से एक अमर्यादित व्यवहार देखने को मिला, तो ऐसे में सभापति के द्वारा अपना पक्ष रखना लाजमी है। और उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट किया कि उनकी जो भूमिका है सभापति के तौर पर एक न्यूट्रल चेयर की है और ऐसे में उनको किसी भी तरीके से किसी भी मामले में इन्वॉल्व करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि ये पूरा का पूरा जो मसला है, चाहे वो मणिपुर वाला मसला हो, इस पूरे मसले पर उन्होंने कहा कि इस पर सरकार भी तैयार थी और चेयर की तरफ से भी अनुमति दी गई थी और सप्लीमेंट्री जो लिस्ट है उसमें भी इसको शामिल किया गया था कि इस पर एक बीच का रास्ता निकालकर चर्चा को आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि इस पूरे मसले पर जबकि सदन में इस तरीके से
पूरा का पूरा वातावरण बना। इस पर भी मीडिया रिपोर्ट्स में भी उन्होंने कहा कि इसको मीडिया को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपनी रिपोर्टिंग करते समय वो नकारात्मक पक्षों को सामने न रखे, बल्कि जो सदन के बेहतरीन पहलू हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से जो महिला सांसद हैं उनके द्वारा जो भूमिका निभाई गई है। खासतौर से उन्होंने जिक्र किया पीटी उषा का कि जब वो चेयर पर थी तो वो पूरी की पूरी उन्होंने कहा कि ये जो दृश्य होते हैं ये हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं को गौरवान्वित करने वाले होते हैं। और इस समय ऐसे में जबकि विपक्ष की तरफ से एक नकारात्मक छवि यहाँ पर सदन के अंदर रखी गई, उन्होंने जो कहा उस लिहाज से मीडिया को भी उन्होंने आगाह किया कि वो रिपोर्टिंग करते समय इस बात का ख्याल रखें कि सदन में जो सही पक्ष है वही सामने आए। जी बिल्कुल ऋषि, और कहीं ना कहीं इस बात पे भी सभापति ने जोर दिया कि जो विपक्ष के सांसद हैं तमाम, ना सिर्फ संवैधानिक जिम्मेदारी बल्कि जो एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है शायद उन्होंने उसका भी निर्वहन नहीं किया। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सदन में जब हम देखते हैं कि सांसदों का जो व्यवहार है, खासतौर से विपक्ष के सांसदों के व्यवहार को लेकर लगातार सभापति की तरफ से आग्रह किया गया और उन्हें चेतावनी भी दी गई, लेकिन ये जो संवैधानिक जो प्रावधान है इसके तहत न सिर्फ कानून का पालन, नियमों का पालन, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि इस तरीके से सदन में जब आप आते हैं तो पूरे देश की नजरें होती हैं और इसको उच्च सदन कहा जाता है। और इसी वजह से उच्च सदन कहा जाता है क्योंकि हमें एक मर्यादित आचरण में जो लोकतांत्रिक पहलू हैं उनको मजबूती से रखना है और नियमों के तहत जब व्यवस्थाएं चलती हैं तो उन नियमों का उल्लंघन और लगातार उल्लंघन करना ये सदन की मर्यादा के विरुद्ध है। बिल्कुल ऋषि, और जिस तरीके से अगर हम जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं उनकी बात की जाए, संजय सिंह या राघव चड्ढा को देखें, संजय सिंह जो करीब 56 बार वेल का जो क्षेत्र रहता है उसमें वो पहुंचे, क्या ये खींच उनकी रही है? जिस तरीके से हमने देखा था जो दिल्ली संशोधन विधेयक जब आया था, क्या उसकी खींच है कि उस वजह से नहीं चाहते कि जो सदन की कार्यवाही है वो सुचारू रूप से चल पाए? देखिए कई बार ये देखने को मिला है सदन में, खासतौर से अगर जैसे आपने जिक्र किया संजय सिंह के द्वारा, वो पहले भी 2 बार निलंबित हो चुके हैं और जो आंकड़ा चेयर की तरफ से रखा गया कि 56 बार वो सदन के वैल में आए हैं, जो कि नेता सदन ने भी सदन को बताया कि इस तरीके का जो व्यवहार है लगातार, ये प्रस्ताव में भी कहा गया कि ये उनका व्यवहार ऐसा व्यवहार है जो उनकी आदत बन गई है, वो बार बार इस तरीके का व्यवहार करते हैं। तो चूंकि सदन को नियमों और मर्यादाओं के तहत चलाया जाना है, इसलिए ये अब जरूरी बन गया है कि इस तरीके के व्यवहार पर रोक लगाई जाए। और इसी कड़ी में जो उनको पहले तो जो मानसून सत्र के बचे हुए कार्यकाल समय तक के लिए उनको निलंबित किया गया था, लेकिन उसके बाद प्रस्ताव में ये बात रखी गई कि किस तरीके से उन्होंने सदन से निलंबित होने के बाद बाहर जिस तरीके से सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाया, मीडिया के सामने ऐसा पक्ष रखा जो अमर्यादित कहा जा सकता है, एक मिस रिपोर्टिंग की गई कि उनके साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ। तो इस पूरे के पूरे मसले पर उन्होंने कहा गया कि जब उनके खिलाफ ये मामला था तो उन्हें पहले चेयर के में भरोसा रखना चाहिए था और उसके बाद जब उस पर कोई फैसला आ जाता उसके बाद अपना पक्ष मीडिया में रखना चाहिए था। तो इससे पहले उन्होंने उन सभी मर्यादाओं का उल्लंघन किया है जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। इसी वजह से अब उनका जो मसला है वो विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया है और ये विशेषाधिकार समिति जब अपनी रिपोर्ट देगी उसके बाद ही उनके जो सदस्यता है उस पर आगे की कार्यवाही होगी, तब तक उनको निलंबित रखा गया है। जी बिल्कुल ऋषि, और खासतौर से फिलहाल तो राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन अगर हम इस बार के सेशन की उपलब्धियों की अगर बात की जाए, उन्होंने कहा कि कई इस तरह की जो उपलब्धियां हैं वो भी जुड़ी हैं, ना सिर्फ जो महिला सांसदों का जिसमें उन्होंने जिक्र किया था, उपसभापति के लिए भी उन्होंने कहा, और किस तरह की उपलब्धियां फिलहाल इस बार हम देख पा रहे हैं? देखिए जहां तक उपलब्धियों की बात करें तो मानसून सत्र में निश्चित तौर से सरकार की तरफ से कोशिश रही कि वो ज्यादा से ज्यादा विधायी कार्यों को आगे बढ़ाएं। तो उस लिहाज से तो ये सरकार ने काफी हद तक इस मामले में सफलता हासिल की, लेकिन जो व्यवधान लगातार विपक्ष की तरफ से रहा उस वजह से जो कामकाज के लिहाज से जो समय और जो आवंटित घंटे थे उसका जरूर नुकसान हुआ है। और इस मामले में हमने देखा था कि जिस तरीके से प्रोसीडिंग्स के दौरान चाहे वो चेयर की तरफ से हो चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से हो, लगातार ये कोशिश की गई थी कि एक आम राय बनाकर एक बीच का रास्ता निकालकर एक चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। तो ये जो चर्चा न हो पाना सदन के लिए
एक ऐसा व्यवहार माना जाएगा जिसकी जिम्मेदारी विपक्ष की है, जैसा कि सत्ता पक्ष कह रहा है। लेकिन इसके अलावा जो विधायी कार्यों के लिहाज से देखा जाए, और दूसरी बात आज का ही अगर हम जिक्र करें तो आज जो 9 सांसदों के जो विधायी का जो समय था और उसमें जो पूरा का पूरा भाव देखने को मिला सदन के अंदर, सभी पार्टियों के नेताओं ने अपना जो पक्ष रखा और उस समय जो माहौल था उसको जरूर एक बार फिर से याद किया जाएगा। और उस समय सभी ने इस बात को स्वीकार भी किया कि हमें सदन में मर्यादित व्यवहार करके शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जैसे ही प्रश्नकाल को लिया गया उसके बाद तुरंत हंगामा शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं ये एक दोहरी नीति कहा जा सकता है विपक्ष की तरफ से कि वो उन्होंने एक तरफ बात रखी कि हमें मर्यादित व्यवहार करना चाहिए, लेकिन जब वक्त आया तो वो मर्यादित व्यवहार उनकी तरफ से देखा नहीं गया। जी बिल्कुल, यानी ऋषि मान सकते हैं कि ना सिर्फ जो प्रश्नकाल था उसमें जिस तरह का नुकसान हुआ कि जिन मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती थी वो विपक्ष के कारण नहीं हो पाई, बल्कि विपक्ष सदन में चर्चा करता तो बेहतर रहता, बल्कि वो बाहर सियासत करता नजर आया। और उसी वजह से ये कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो होता है, क्योंकि लगातार तैयारी की जाती है। जब भी कोई विधेयक आता है पूरी तैयारी की जाती है किस तरीके से उसको लाया जाएगा, और यहाँ वही हमने देखा जिसका जिक्र सभापति कर रहे थे। बिल्कुल, अगर हम किसी भी विधेयक की बात करें तो किसी भी विधेयक पर चर्चा के लिए समय आवंटित होता है और उस समय का उस सदुपयोग ये होता है कि हर एक पक्ष, हर एक राजनीतिक दल उस पर अपना पक्ष रखता है। लेकिन जब वक्त ऐसा आता है कि आप उस पर अपना कोई पक्ष नहीं रखते हैं और शोर शराबा और हंगामा करते हैं और खुद सदन से वॉकआउट कर जाते हैं। कई बार ऐसा देखने को मिला कि विधेयक को सदन में रखते ही विपक्ष ने वॉकआउट किया। उसके बाद ये आरोप लगाना कि विपक्ष की गैर मौजूदगी में बिल पारित कराए गए। जब सदन में बिल लाया जा रहा है और उस समय आप उस पर चर्चा न करना, उस पर अपना पक्ष न रखना बल्कि वॉकआउट करना, ये रणनीति और बाद में मीडिया में जाके अपना बयान देना, इसको सभापति ने बिल्कुल सिरे से खारिज किया कि यह उचित नहीं है। और इसके खिलाफ इस तरीके का जो माहौल बनाया गया उसके लिए उन्होंने मीडिया को भी आगाह किया कि वो सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष न सुने बल्कि सदन के अंदर क्या हो रहा है इसको भी देखें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता रहे थे किस तरीके से जो राज्यसभा की कार्रवाई फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई, लेकिन जो सभापति ने कहा कि किस तरह का आचरण व्यवहार एक सांसद को रखना चाहिए, क्योंकि आप नज़ीर पेश कर रहे हैं और ऐसे में अगर आप कुछ भी करेंगे तो देश दुनिया देख रही है आपको, इसलिए आपको आगे का भी सोचना चाहिए। फिलहाल खबर हटके में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।